Hello. Okay. Okay. So go to the Revit file. We will also do the previous day workout, means what we did yesterday, no? So we revised that also today. Go to the Revit. All you means install the Revit 2021. I hope you all installed the Revit 2021. So I'm going ahead, okay? So in model, you have to click on new metric architectural, okay. Then this window is coming. Just give me a minute. Okay. Yes. The window is coming here. After that, you have to link the CAD file. First of all, you have to do unit setup. Click UN on the keyboard. Other or else you have to do manage project units. And in that you have to check what's the unit you want. If millimeters, you just click millimeters, or if meters, you have to click the meters, and the decimals, what types of decimal you want after the digit. Okay, so I want 0 decimal. Okay, okay. After that I'm doing the levels. Just give me a minute. Okay, I'm doing the levels. So in elevation, आपको elevation में जाना है, कौन से भी ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, जो भी आपको जाना है वो एलिवेशन में जाके आपको फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, कि आपका जो ऑटोकैड ड्राइंग है वो कितने फ्लोर्स का है, अकॉर्डिंगली आपको सेटअप करना है। मतलब अगर आपका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर प्लिंथ लेवल और टेरेस लेवल है तो आपको वैसे ही सेटअप करना है लेवल्स। अगर आपका G+2 है तो आपको G+2 लेवल सेटअप करना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल और टेरेस लेवल ले रहे हैं। ओके, so go to the Revit file and then here you just click the ground level, right here ground level. देन कम हियर। अभी हम लोग प्लिंथ दे रहे हैं तो हम लोग का प्लिंथ है 450, तो 450 लिख के उसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्लिंथ लेवल लिखेंगे। प्लिंथ लेवल, यस। फिर ये सेटअप करना है आपको ऊपर की तरफ। जस्ट गिव मी अ मिनट। चैट्स इज, वेयर इज द चैट्स? ओके, so all are getting my point, right? Means whatever I am saying, my voice is audible, right? Yes, ma'am. Yes. Oh, okay, okay. So after that, you have to add another level. Right click here and then create similar. Just give me a minute. The pop-up is saying, please, what is that? Please move the slide. This window away from the shared application. Okay, fine. I'm hiding here. Okay. So click on this, then right click. You have see create similar. Create similar, click create similar and give a height, whatever height you want. I'm giving here 4000 height. Just type on board 4000 and click. You will get the similar level on the 4000. Then just drag up to this point. Your level is done. If you want, you can give it 0, 0, 0, 1, 0 to terrace floor or first floor. I'm giving here terrace. Okay.
So till this point we have covered yesterday. Okay, so now I'm going ahead. So go to the floor plan. In left side, you can see the project browser here, left side. So in that, here is a floor plan. In floor plan, you go to the ground level. If you have another drawing on ground level, you can put here. Otherwise, you can go to the plinth level. मैं अभी प्लिंथ लेवल पे जा रही हूँ क्योंकि मेरा मुझे जो ड्राइंग पुट करना है वो प्लिंथ लेवल पे ऐड करना है ऑटोकैड ड्राइंग। तो मैं पहले प्लिंथ लेवल पे जाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोकैड ड्राइंग पुट करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटोकैड ड्राइंग कैसा है हमारा जो हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं। ये स्क्रीन सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल ऑटोकैड ड्राइंग? जस्ट से मी यस और नो दैट सो दैट आई फाइल्स कैन आर विजिबल मैम। विजिबल ऑटोकैड। ना। हाँ ओके ओके। सो आपको जब आप ऑटो कैड का ड्राइंग लेते हो ना, तो आपको ये पूरा मतलब पता होना चाहिए। ये आपको साइड बाय साइड चालू भी रखना है सो दैट आप उसमें देख सकते हो कि इसका जस्ट गिव मी मिनट। ये जो डायमेंशंस है, वेट कितना है इसका, वॉल का वेट क्या है, फिर विंडो का कितना ओपनिंग है, ये सब आपको देखने के लिए आप साइड बाय साइड इसको ओपन भी रखना है। फिर ये मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद हम मॅम. हॅलो. यस। हाँ सर। फाईल्स फक्त दिसतात आता. ड्रॉइंग वगैरे काही ओपन केलेलं नाही ना? नाही, ड्रॉइंग केलेत सर ओपन। दिसत नाही ते. ते जस्ट खाली येतं. हा हा. आता फक्त ते फाईल्सचं नाव दिसतात. ड्रॉइंग दिसत नाही. हे ड्रॉइंग्स दिसत आहेत का? फ्लोर प्लॅन, प्लेन फ्लोर प्लॅन नाही दिसत आता. नाही दिसत आहे? नाही नाही. फक्त फाईलची नावं दिसतात बघ. अं, हम्म, कळत नाहीये मग, कारण माझ्या ह्याच्यात तर होल स्क्रीन शेअर केली आहे मी। हा फक्त मी ते फाईलची नावं दिसतात मला. अच्छा, प्लेन फ्लोर प्लॅन प्लॅन नाही दिसत आहे यामध्ये। प्लॅन दिसत नाही. प्लॅन दिसत. ओके। मी शेअर परत करायचं. डिस्कनेक्ट करून कनेक्ट करते सर। हा 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 हो। चालेल. ओके। गोष्ट केलंय मी तुम्हाला. हाँ चालेल. हाँ हा. हाँ, ओके। येस सर, आता जस्ट चेक करा एकदा फाईल दिसतंय की नाही। ओके. आता फाईल दिसते? हा ओपन व्हायला आले. ओके। प्लिंथ लेवलची ऑटोकॅड फाईल दिसते का आता? नाही अजून ओपन व्हायचं. अच्छा, कारण मी माझ्या साईडला ओपन केली आहे। हा हा. हम्म।
अजून ओपन झालं नाही. नाही दिसत आहे अजून पण सर. नाही, अजून ओपन होतेच, राऊंड फिरायला लागला. स्क्रीन शेअर हम्म. केली. माझ्या इथे एक ऑप्शन येतं, युअर स्क्रीन शेअरिंग इज पॉज, पण का ते नाही तुम्हाला होत? होस्ट करू दे काय? हा. होस्ट करू दे. होस्ट करू दे काय तुम्हाला? होस्ट केलं तरी मला आयडिया नाही, म्हणजे हे नाही होणार. प्रॉब्लेम काय येतोय कळेल. एकदा चेक करून बघा, होस्ट करून बघा. इश्यू आहे काय? हम्म. चौगुले मॅम, परीन चौगुले मॅम. हॅलो. फाईल ओपन झालेली दिसते तुम्हाला? मला दिसत नाही अजून. आवाज येत नाही सर तुमचा. फाईल ओपन झाले का? दिसते? नाही नाही, अजून नाही ना? हा हा. अजून सुरू नाही झालं. बरोबर. मॅडम अजून ओपन नाही झाले ते. मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला एक स्क्रीनशॉट पाठवते, कारण मला हाच ऑप्शन दिसतोय स्क्रीन बरोबर. पॉजचा, आणि त्याला काही पुढे अल्टरनेटिव्ह दिसत नाहीये. हा हा. हा, मी एकदा परत वाटलंच हे करते, रिजॉईन होते मी. हा हा हा. ओके. आप यहाँ पे कैड फाइल लिंक करते हो, तो आपको जो भी कुछ चेंजेस करने रहेंगे कैड फाइल में, अगर आपको बताया गया कि अरे यहाँ पे विंडो नहीं चाहिए, लोकेशन चेंज करना है, तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हो कैड फाइल में। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका रेविट फाइल में भी चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है लिंक कैड और इम्पोर्ट कैड में। अगर आप इम्पोर्ट कैड में वहां पे चेंज करोगे कैड फाइल में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक नहीं किया है हम लोग ने, वो इंपोर्ट किया है सिर्फ। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंपोर्ट कैड और लिंक कैड में। तो दोनों, अगर आपको इंपोर्ट कैड आपने किया और आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ही चेंजेस कर सकते हो, कैड में नहीं कर सकते। या फिर कैड में जो चेंजेस आप करते हो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो मैं आपको लिंक ऐड करके दिखाती हूँ। इफ मोस्टली हम लोग लिंक्ड ही प्रेफर करते हैं जब हम लोग को हाई राइज बिल्डिंग करने रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में आपको रिपीटेशन रहते हैं, आप कुछ चेंजेस रहते हैं क्लाइंट के तरफ से, तो आपको लिंक्ड ही प्रेफर करना है। लेकिन आपका छोटा प्रोजेक्ट है या फिर आपको जीएफसी ड्राइंग मिल गई है, तो आप इम्पोर्ट कैड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग लिंक ऐड करेंगे। आप सब भी लिंक्ड से ही प्रेफर करो लिंक ऐड करना। तो यहाँ पे मुझे आया सेव प्रोजेक्ट का टैग, तो ये अभी फिलहाल मैं सेव नहीं कर रही हूँ, तो मैंने क्लोज कर दिया। तो लिंक ऐड किया, क्लिक ऑन द लिंक ऐड, देन इन लिंक ऐड यू हैव टू चेक विच फाइल यू हैव टू link. So first I want to link plinth level, so click on the plinth floor Revit plan, and then here are the settings. In if you select the colors preserve, means whatever the color you have done in CAD drawings, they appear similarly. And if you select the black and white, then your drawings will be appear black and white in this drawing. I'll show you both the things. Okay, the color you select, if you select preserve, देन लेयर्स आर ऑल, इंपोर्ट यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट। मतलब कि हम लोग के जो, मैं अभी पहले आपको दिखाती हूँ, जो आपके ऑटो कैड की यूनिट्स रहते हैं वही आपको रेविट पे ऑटोमेटिकली ऑटो डिटेक्ट हो जाते हैं। यहाँ के यूनिट्स आपको अगर देखने हैं तो UN एंटर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो MM में है, और हमारा रेविट ड्राइंग भी MM में है।
तो आप अगर ऑटो यूनिट्स करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली यूनिट लिंक हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपका वैसे लिंक नहीं होता है, तो आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना है तो मेरा ऑटो डिटेक्ट में होता है, तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। कभी कभी आपको प्रॉब्लम आता है, समटाइम्स यू हैव टू फेस प्रॉब्लम इन इंपोर्ट यूनिट्स। सो यू, इफ यू डिडंट गेट द फाइल इन प्रॉपर unit, so you just click here whatever units you have. Okay, so I'm just selecting preserve color, layers is all, import unit is auto detect, and place at, if you have the similar, means on a plinth level you are having, then you didn't have to select the level. You just select current view only, tick on the current view only. So this window is closed. देन पोजीशनिंग, मतलब आपको ये पोजीशन यहाँ पे, अब कैमरा के अंदर ही आपको ड्राइंग रखना रहता है। तो वो पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मैन्युअल सेंटर। तो मैन्युअल सेंटर सिलेक्ट, मैन्युअल मतलब आप मैन्युअली इसको प्लेस कर सकते हो। तो मैन्युअल सेंटर करने के बाद आपको सिर्फ करना है ओपन। ओपन करने के बाद आप मैन्युअली, ये देखो, आप मैन्युअली इसको प्लेस कर सकते हो। अभी हम लोग ने सिलेक्ट किया था प्रिजर्व, तो इसलिए ये ड्राइंग आ गया आपका कलरफुल। If you want to select in black and white, then you can do similar things. I'm deleting this so that you can know how to do the black and white thing. Okay, link at, select drawing, then select black and white, auto detect, manual center, current view, open. So see here, the black and white drawing is there. Okay, तो black and white में आ गए ये ड्राइंग। अभी आपको इसमें ऐड करने हैं वॉल्स। उसके पहले अगर आपको दूसरे टेरेस फ्लोर पे भी प्लान इंसर्ट करना है, तो सिमिलर वे में आप कर सकते हो। अभी हम लोग ने इसमें प्लिंथ लेवल में हम लोग ने लिंक ऐड किया, अभी हम लोग टेरेस फ्लोर पे इंपोर्ट ऐड करते हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए इंसर्ट में। पहले तो आपको आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आपको करना है इंपोर्ट कैड, फिर सिलेक्ट करना है टेरेस। टेरेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर प्रिजर्व कलर, वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सेटिंग आपको पता रहनी चाहिए। करंट व्यू पे ही टिक करना है। पोजीशन में आपको करना है मैनुअल सेंटर, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट ओपन, एंड देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। ये आप देख सकते हो, मेरा जो ये कर्सर है इस पे देखो, ये जो ऑप्शन बार है वहां पे, अब अगर आप देखोगे ये तो जीरो प्लिंथ लेवल है। तो ये वाली ड्राइंग को अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो ये जो रिबन है इसमें जो एक्सप्लोड है वो बंद है, मतलब आप इसको एक्सप्लोड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको कुछ इसमें ड्राइंग में चेंजेस करने हैं, तो ऑटोकैड से आप चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आते हो टेरेस फ्लोर में, और यहाँ पे आप अगर देखते हो कि ये वाला हम लोग ने इंपोर्ट कैड किया था, इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको ये एक्सप्लोड विंडो ओपन दिखेगा। मतलब ये आपको ऑटो कैड से नहीं कर सकते आप, लेकिन आप ये रेविट से ही कर सकते हो चेंजेस। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर आपको ये कॉलम निकालना है तो आप एक्सप्लोड करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से ही करोगे तो ये डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे आपका एक्सप्लोर हो जाता है। मैं अंडू कर रही हूँ, सो दैट आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे कॉलम है। तो ये डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है लिंक कैड और इंपोर्ट कैड में। तो मैं ये दोनों डिलीट करती हूँ पहले, क्योंकि हम लोग ने डिफरेंट लिया है। जो हम लोग का यहाँ पे फाइल ओपन है वो नहीं लिया है हम लोग ने, दूसरा फाइल क्लिक करके लिया है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक, ओके, अभी आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है ये।
प्लिंथ लेवल में हो आप। ये प्लिंथ लेवल में अगर मैं यहाँ से स्टेयरकेस निकाल देती हूँ, ओके, रुको, मैं इसमें से बेड का जो है टेक्स्ट वो निकाल देती हूँ, इसको सेव करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ यहाँ से, और उसके बाद में अगेन मैं ड्राइंग में जाती हूँ, यहाँ से फाइल ओपन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ का जो टेक्स्ट था वो चला गया। सिमिलरली अभी आपको ये फाइल बंद करनी है, उसके पहले आपको ये सेव करना पड़ेगा। तो सेव का ऑप्शन कैसे है यहाँ पे, आप कर सकते हो, सेव एज भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। सेव करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। पहले तो आप फोल्डर सिलेक्ट करना जिसमें आपको सेव करना है, तो मैंने रेविट फोल्डर बना के रखा है आपके लिए। मीन्स अगर आप रेविट फोल्डर में ऐसे ही आप सेव करने की आइडिया मीन्स स्ट्रेटेजी लगाओगे ना, तो आपका सेविंग कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा, फोल्डर सेव कहाँ पे रहते हैं। तो सेव करने के टाइम पे ही आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बैकअप आपको 3 लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जितना बैकअप रहेंगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे यूज करना है। उसके बाद में ओके करना है आपको। प्रोजेक्ट को कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे बंगलो नेम दिया है। तो उसके बाद में सेव करना है, ठीक है। तो मैं इसे अभी क्लोज कर रही हूँ। क्लोज करने के टाइम पे आप डायरेक्टली अगर यहाँ से क्लोज करते हो तो आपका पूरा रेविट क्लोज हो जाएगा। तो आपको राइट साइड पे क्लोज नहीं करना है, और जब भी आपको यूज करना है आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके यहाँ पे नीचे क्लोज रहता है, तो क्लोज करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, पूरा रेविट बंद नहीं होगा आपका, ठीक है। तो फिर से आपको इसमें जाना है। जब आप जाओगे इसमें तो आपको दिखेगा कि यहाँ का जो टेक्स्ट था जो हमने यहाँ से डिलीट किया था कैड से, वो यहाँ रेविट से भी चला गया है, क्योंकि हम लोग की ये फाइल लिंक है। और हम लोग का जो टेरेस फ्लोर है वो लिंक नहीं है, वो हम लोग का इंपोर्ट कैड है। तो इंपोर्ट कैड में आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, यहाँ तक आपको समझ में आया सबको? Participant, please reply in the chat box so that we move forward. ओके, okay. Any queries till this point? If you have any queries, just ask me. If you have queries, please ask by unmuting yourself and then mute yourself. If you don't have a query, just tell in chat box, continue, so that I continue with another slides. Please type C for continue. Okay. Okay, okay, fine. So I'm going ahead. After that, you have to draw the walls. Okay. So how to draw walls? In architecture tab, you have to go to the wall architecture, and then here are different types of wall. Before that, you have to select in this toolbar, here are the detail level, in that you have to select fine, आपको fine select करना है। बाद में यहाँ पे एक विजुअल ग्राफिक का रहता है, उसमें आपको रियलिस्टिक सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद में आपको जाना है वॉल में, आर्किटेक्चर में, वॉल आर्किटेक्चर, एंड देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल रहते हैं। तो अगर आपको डिटेल वॉल में ड्रॉ करना है, मतलब कि ये वाला जो डिटेल ड्राइंग वॉल है, इसको हम लोग एक जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हो। यहाँ पे ये डिटेल ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये इसमें लेयर्स रहते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये लेयर क्या क्या है और उसका थिकनेस क्या है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज में एडिट टाइप कर सकते हो, और इसमें आएगा आपका, जस्ट गिव मी अ मिनट।
यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको फिर से एडिट पे जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से लेयर है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर है वॉल में, और इसके थिकनेसेस भी दिए हुए हैं। और आपको ये टोटल वॉल थिकनेस देखना है तो यहाँ पे आता है टोटल वॉल थिकनेस इज 299। यहाँ पे डिफरेंट थिकनेस है, अगर आपको थिकनेस में काम करना है तो। मोस्टली इन आर्किटेक्चर में डिपेंड्स करता है कि आपको थिकनेस पे करना है या सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए करना है। तो अभी हम लोग आपको दोनों भी दिखाती हूँ मैं, ये आपको बता दिए। और दूसरा है आपका वॉल, कोई भी थिकनेस का आपको बनाना है। अभी मैंने ये 200 लिया तो इसका थिकनेस 200 है, आप देख सकते हो इसका थिकनेस। जस्ट मिनट, ये 200 का वॉल है, लेकिन हमारा जो ये वॉल है वो 150 का है। सी, तो यहाँ पे तो 150 का वॉल नहीं है, ये जो वॉल है हम लोग का ड्राइंग का वो 150 का वॉल है। और हम लोग के वॉल टाइप में 150 का वॉल नहीं है जो दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को उसे बनाना है। तो कैसे बनाना है, जो आपको वॉल में जाना है, जो ये जेनेरिक वॉल रहता है 200 का, वो उसका प्रॉपर्टी है, आपको उसकी प्रॉपर्टी को कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, तो इसीलिए आपको उसका डुप्लीकेट बनाना है। तो कैसे बनाना है, इन प्रॉपर्टीज सिलेक्ट एडिट टाइप, आफ्टर दैट सिलेक्ट डुप्लीकेट। तो आपको इसको नाम देना है, हमारा 150 वॉल है तो हम लोग 150 थिक वॉल ऐसे नाम देते हैं। फिर ओके करना है। देन आपको जाना है एडिट में, इन स्ट्रक्चर वी हैव टू गो इन एडिट। देन हियर इज अ थिकनेस टैब, इन थिकनेस you select 150. Okay, and then if you want to add material to the wall, you can add here in the material section. Click on by category, here are the three dots, select on that three dots, and then you can select any material if you want. If you didn't get the material by scrolling, you just search here brick wall. Okay, so here just a one brick wall is there, and in on the other side you can see here types of brick wall. If you want to add here, no, so you just click the arrow, upward arrow. I'm selecting this brick wall. So here I'm selecting upward arrow so that this brick wall comes here. See, okay. After that, select this. In appearance go, you can see here the how the brick wall is means showing in the image, and then just duplicate this. After apply, okay, ओके करना है आपको सिर्फ, जब तक ये विंडो पूरा बंद नहीं होता है। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी ये आप देख सकते हो कि आउटसाइड पे है, इसको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जस्ट आपको ये बता देती हूँ कि ये थिकनेस आपका कम हुआ या नहीं। तो इसके लिए आपको जाना है क्विक एक्सेस से, आपको सिलेक्ट करना है अलाइन डायमेंशन, और आपको देखना है कि ये थिकनेस 150 का है या नहीं। ये देखो 150 का आ गया वॉल जो हम लोग ने अभी बनाया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये अलाइन नहीं है, ये तो हमारा जो वॉल है वो तो अंदर के साइड पे है। तो आपको कैसे करना है, आपको जाना है वॉल पे। ठीक है, आपने वॉल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन लाइन में ऑप्शन बार है, मतलब ऑप्शन टैग है, तो उस पे देखना है आपको। तो यहाँ पे लिया है लोकेशन लाइन, तो हमारा वॉल सेंटर लाइन था, तो आपको करना है यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर या फिर फिनिश फेस इंटीरियर, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। फिर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो भी टैग करोगे वो बराबर मीन्स जो भी हमारा ड्राइंग है उस पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ने ये छोटा सा ही बनाया पहले, आपको समझ रहा है सबको। आप अभी मैं आपको प्लिंथ लेवल पे दिखाती हूँ। हम लोग ने अभी तो वॉल बनाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टीज में 150 थिक वॉल हमारा बन चुका है, तो आप उसको कहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अभी हम लोग ने लोकेशन लाइन में इन ऑप्शन बार सिलेक्ट किया फिनिश फेस एक्सटीरियर, तो वो सिलेक्ट किया। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा हाइट अनकनेक्टेड है, और आप प्रॉपर्टीज ब्राउजर में भी देख सकते हो कि बेस कंस्ट्रेंट आपका प्लिंथ लेवल है,
लेकिन टॉप कंस्ट्रेंट आपका अनकनेक्टेड है, मतलब 8000 है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ तक 8000 है आपका, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जहां तक हम लोग को चाहिए फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये देखो, अभी हम लोग 3D में चेक करेंगे इसे, दोनों का लेवल्स देखो, मतलब ये जो अनकनेक्टेड था वो 8000 तक चला गया। जस्ट अनकनेक्टेड जो था वो 8000 तक था, लेकिन ये जो है हमारे फ्लोर प्लान तक ही है, मतलब टेरेस फ्लोर प्लान तक ही है। तो हम लोग को ऐसे ही बनाना है। तो अभी तक हम लोग ने ये जो बनाया उसे डिलीट करेंगे, प्लिंथ पे जाएंगे, फ्लोर प्लान पे, देन हम गो टू द वॉल जो हम लोग ने बनाया है। उसके बाद में यहाँ पे रहता है एक विंडो, मॉडिफाई विंडो, इन दैट यू हैव टू सिलेक्ट पिक लाइंस। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ये मैंने ऐसे किया, फिर ये सिमिलर ही लग रहा है कि ऑटो कैड में भी हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, हम लोग को यहाँ से क्लिक करना है पिक लाइन पे। मैं आपको ये सब इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि क्या क्या टूल्स रहते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको। अगर मैं डायरेक्टली आपको दिखा दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका क्या मतलब, स्मॉल वर्जन कैसा है और डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 सब दिखा रही हूँ इसमें। तो in this you have to select pick lines and then select here, see, then select one on the vertical side, then select here. Okay. Accordingly you have to select on each side. तो अगर आप देखोगे कि मैंने ऐसे रैंडमली इतना ही क्लिक किया है, तो मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मुझे अभी इसको ज्वाइन करना है। तो ऑटो कैड में आपको ज्वाइनिंग के लिए ऑप्शंस रहता है फिलेट, मतलब अगर आपको ये आपका ड्राइंग है इफेक्ट, अगर आपको ये कॉर्नर ज्वाइन करना है ऑटो कैड में तो आपको फिलेट करना पड़ता है, मतलब फिलेट देके आपको ये क्लिक करोगे तो आपका ये ज्वाइन हो जाता है। वैसे ही रेविट में आपको एक ऑप्शन रहता है ट्रिम करके। तो आपको वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो ये सिलेक्ट करना है, फिर आपका ये और ये देखो आपका पूरा वॉल कनेक्ट हो गया। वैसे ही आपको यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ तक लेना है, ये आपका पूरा वॉल कनेक्ट हो गया। सिमिलरली आपको करते जाना है जब तक ये आपका पूरा नहीं होता। सी, आपका एक्सटीरियर वॉल तो बन गया। अभी आप 3D में देखोगे तो आपने ये 3D का वॉल बना दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये वॉल कैसे बनाना है। जस्ट राइट अ कमेंट सो दैट आई कैन गो अहेड नो। ओके स्मिता मैम, सीमा मैम, आई एम टेलिंग यू, repeat how to change properties of selected wall type. Okay. आपको जाना है प्लिंथ में। अभी आपको मैं इंटीरियर के लिए वॉल टाइप सीमा मैम मैं आपको बताती हूँ कि इंटीरियर के लिए कैसे चेंज करना है। ओके, मतलब सिमिलर ही है आपको एक्सटीरियर के लिए, जो हम लोग ने ऐसे बनाया है वो इंटीरियर के लिए मैं बताती हूँ, मतलब हम लोग का रिपीट भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कैसे करना है। तो आपको जाना है, अभी ये भी 150 का वॉल है, पहले तो आपको चेक करना है कि आपका वॉल थिकनेस क्या है। तो ये भी इंटीरियर वॉल भी हम लोग का 150 थिकनेस का है। तो आपको जाना है आर्किटेक्चर में, वॉल में, वॉल आर्किटेक्चर में, देन सिलेक्ट करना है आपको कोई भी वॉल। अभी है हम लोग ने बनाया, ये भी आप सिलेक्ट करते सकते हो या फिर 200 का भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी 200 का इसीलिए सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि एक्चुअल जो वॉल्स रहते हैं उसको एडिट कैसे करना है। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे जेनेरिक 200 mm वॉल, देन हम लोग जाएंगे एडिट टाइप में। आफ्टर दैट you have to duplicate first, it's very important thing।
यू हैव टू डुप्लीकेट, अदरवाइज क्या होता है, अगर आप इसको डुप्लीकेट नहीं करते हो तो इसका ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। फिर अगर आप नेक्स्ट रेविट में करोगे तो आपको सिमिलरली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसीलिए आप जब भी नया वॉल बनाओगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डुप्लीकेट करना है। फिर आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हो। अभी हम लोग इसको नाम देंगे 150 थिक इंटीरियर वॉल, बिकॉज हम लोग को अभी इंटीरियर को यूज करना है, इंटीरियर वॉल्स। ओके, तो इसको ओके करेंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर में एडिट में जाएंगे आप, यहाँ पे थिकनेस रहता है, सी थिकनेस, इन दिस थिकनेस you just click, then select whatever the thickness you want for the wall. Here I'm writing 150 because our interior wall are 150. Then click on the structure material, click here, and then here are the three dots. Click on the three dots, then go to the select any material you want. अभी यहाँ पे हम लोग को ब्रिक नहीं लेना है, इन केस हम लोग को दूसरा कुछ वॉल लेना है तो आप दूसरा वॉल भी ले सकते हो, कोई भी वॉल। या फिर आपको डिफॉल्ट वॉल चाहिए, कुछ कलर बाद में चेंज करना है तो आप डिफॉल्ट वॉल ऐसे लिख के भी एक वॉल सिलेक्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट वॉल। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में आपको जाना है अपीयरेंस में, वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वॉल है, इसको कुछ कलर वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद में इसको करना है डुप्लीकेट। अगर आपको दूसरा मटेरियल चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आपको डुप्लीकेट करना है, उसके बाद में अप्लाई करना है वो, और ओके करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ ओके करते जाना है जब तक ये क्लोज नहीं होता, मतलब ये पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग ने जो चेंज किया है वो क्लोज करना है आपको ओके करके। ओके ओके, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट, मीन्स अभी पिक लाइन भी बताती हूँ, नॉर्मल लाइंस भी बताती हूँ। तो ये आपने किया, ठीक है, ये आ गया आपका, ये आया आपका मैन्युअली। अगर आप पिक लाइन करोगे तो इस पे सिर्फ सिलेक्ट करने के टाइम पे ही आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगा सेंटर से, मतलब आप बराबर कर रहे हो। अगर आपका लाइन अगर ऐसे बाहर के साइड पे डॉटेड आता है मतलब आपका अलाइनमेंट गलत आ रहा है। ये देखो, ये अलाइनमेंट गलत आ रहा है। अगर मैंने ये सेंटर पे लिया तो आपका अलाइनमेंट बराबर है। तो इन केस आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपका यहाँ तक आपने ट्रिम कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है क्योंकि ये तो बाहर का है। अगर मैं इसको ट्रिम करके ज्वाइन करूंगी तो इधर का जो है वो वाला वॉल चला जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने इसको ट्रिम कर दिया तो ये देखो यहाँ का वॉल चला गया और मुझे एरर ऑप्शन आया, कांट कीप एलिमेंट ज्वाइन। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो आपको इस टाइम पे कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक डॉट आएगा, उसको जस्ट ऐसे ऊपर पुश करना है जब तक आपका एंड नहीं होता। ठीक है, तो अब आप 3D में देखोगे तो ये अलग मटेरियल आ गया। सीमा मैम, आई होप अभी आपको समझ, मतलब यू हैव टू नो हाउ टू डू दिस। यस सीमा मैम। एंड एनीवन हैव अ क्वेरी, जस्ट आस्क। ओके ओके, okay, shall I go ahead, or means if you have any query just ask me. Shall I go ahead? Yes, ma'am. Okay okay. Yes. ओके, सो मुझे रिमाइंडर आया क्योंकि मेरा रिमाइंडर 15 मिनट्स पे सेव है, तो मुझे 15 मिनट्स के बाद में रिमाइंडर आएगा कि सेव प्रोजेक्ट, तो मुझे सेव करना है तो मैं सेव करूंगी। ठीक है, मुझे अभी सेव करना है। अगर आपको रिमाइंडर चेंज करना है कि आपको 15 मिनट्स में नहीं चाहिए, आपको 30 मिनट्स में चाहिए या फिर 1 आवर के बाद चाहिए, तो आप फाइल में जाके ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सेव रिमाइंडर इंटरवल आएगा, तो आप 15 मिनट्स के मीन्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स यू हैव टू select the 30 minutes, 1 hour, 2 hour. It's depend on you. If you don't want any reminders, so just select the no reminders. Okay, after that
we have to draw all the interior walls. In case if we did means material done by us for this wall, and if you have to change the material or color of this wall, you can change. How to change that? I'll show you. Select this, आपको ये select करना है, then आपको जाना है edit type में, फिर आपको डुप्लीकेट नहीं करना है क्योंकि आपको इसे ही चेंज करना है, राइट? अगर आपको डिफरेंट बनाना है ऐसा तो आप डुप्लीकेट करोगे। अगर आपको इसका ही प्रॉपर्टी चेंज करना है तो आपको जाना है एडिट में, फिर आपने जो कलर लिया था, मटेरियल चेंज करना है ना आपको, तो फिर आपको मटेरियल में आना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको सिर्फ कलर चेंज करना है तो आप कलर पे आ सकते हो, अपीयरेंस में, कलर में, और आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको कलर चाहिए। इनकेस मुझे वाइट चाहिए तो मैंने वाइट किया, ओके किया, अप्लाई किया, फिर ओके किया, देन ओके, ओके। तो ये वाइट हो गया। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग का बैकग्राउंड वाइट है। ये देखो हम लोग का इंटरनल वॉल वाइट हो गया। अभी आपने ये देख लिया कि ये तो वाइट है लेकिन मेरा पहले का ही अच्छा था, तो आप यहाँ से, यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, यहाँ से रीडू कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। मतलब अंडू करोगे तो आपका जो पहले का था वो वैसे ही आएगा फिर से, ठीक है? सो गो टू अगेन प्लिंथ लेवल, देन सिलेक्ट आर्किटेक्चर वॉल, सिमिलर थिंग, and then pick lines and just pick the lines. I'm just selecting all the levels, means what we have to draw, no? I'm selecting that. अभी आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे आपको यहाँ तक लेके जाना है तो वैसे करना है। उसके बाद में इसे क्लिक करके आगे तक लेना है। फिर ये दोनों इसके अंदर अगर आपको ओपनिंग भी देना रहेगा लिविंग टू किचन के लिए, फिर भी आपको इसको ज्वाइन करना है। फिर वो ओपनिंग कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगी इसमें, ठीक है? तो अगर ज्वाइनिंग के लिए भी आपको यहाँ से ट्रिम ही क्लिक करना है, मतलब यही क्लिक करके ज्वाइन होता है। इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको दूसरा नहीं सिलेक्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए, और जो कॉर्नर ज्वाइनिंग है उसके लिए, दोनों के लिए आपको ट्रिम ही करना है, ठीक है? ट्रिम के लिए दूसरा शॉर्टकट है TR ऑन कीबोर्ड। तो अभी मैं फिलहाल TR करके ज्वाइन कर रही थी। ठीक, हम लोग ने यहाँ पे तो ऐड कर दिया। अभी ये डोर है, फिर भी हम लोग ने यहाँ पे वॉल क्यों दिया, मैं आपको ये तो कल करने वाले हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे वॉल क्यों ऐड किया है। अगर मैं डोर डायरेक्टली यहाँ पे करती हूँ तो मुझे ये बैन वाला सिंबल आता है, क्योंकि डोर सिर्फ वॉल पे ही कनेक्ट होते हैं रेविट में, अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं होते। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वॉल ऐड किया है, ठीक है? अभी ये डिलीट इंस्टेंस आ रहा है क्योंकि इसका थिकनेस कम है, मतलब यहाँ का जो विड्थ है वो कम है और डोर का विड्थ ज्यादा है। तो वो मैं कल बताऊंगी कि कैसे करना है, ओके? तो इसीलिए हम लोग को वी हैव टू ऐड वॉल ओवर हियर, सो ऐड वॉल, ओके। Then see on the means in the 3D view you have to check whether your drawings is right or not, okay? Here are the drawings, you can see. If you have to check the 3D in a manual, means how to check in view, then in 3D view, default 3D view, then your 3D is there, and in quick access bar there is a symbol of 3D, means 3D home. So select directly from the quick access toolbar.
3D home. Okay, so here the 3D wall. नाउ हम लोग को इसमें कटिंग करना है, मीन्स ओपनिंग ऐड करना है। तो आपको ओपनिंग ऐड करने के लिए कैसे ऐड करना है, अगर हम लोग को इसमें ओपनिंग ऐड करना है तो कैसे करना है वो बताती हूँ। ठीक है, अभी ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको अगर मुझे ज्वाइन करना है, मतलब ये वाला वॉल अलग है, ये वाला वॉल अलग है, तो इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिबन में ज्वाइन आएगा, तो ज्वाइन ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन होता है। इनके सबका ज्वाइन अगर नहीं होता है तो फिर आप इसको कट करके यहाँ से सिमिलरली ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग 3D में जाते हैं और यहाँ से आपको इसमें अगर ओपनिंग ऐड करना है तो आपको ओपनिंग कैसे ऐड करना है वो भी बताती हूँ। उसके पहले आप पहले क्या करोगे, प्लान में जाओगे, इनके सबको यहाँ पे ओपनिंग ऐड करना है ऑन दिस साइड ऑफ, मीन्स इन किचन एंड लिविंग वॉल पे आपको ऐड करना है, तो आपको एक सेक्शन ऐड करना है उसके लिए। तो व्यू में सेक्शन में आप आओगे और सेक्शन ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि सेक्शन का जो एरो है वो ये साइड पे, अपोजिट साइड पे, हम लोग को ये साइड पे वॉल है, तो हमारा सेक्शन हम लोग को चेंज करना है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे दो एरो दिखते हैं, तो अगर हम लोग इस पे क्लिक करते तो ये सेक्शन यहाँ पे आ गए। ठीक है, then double click on this. So see, here you can see the wall. Okay, so go to the 3D, select this. अभी हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है ओपनिंग, एडिट प्रोफाइल करेंगे। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली करते हो तो वो अलग आएगा, मीन्स यहाँ का आपको समझेगा नहीं कि कैसे करना है। तो आपको जाना है वो सेक्शन हम लोग ने जो बनाया था, यहाँ पे जाना है आपको, फिर यहाँ से क्लिक करना है, आपको जैसे बनाना है ओपनिंग। अगर आपको डिजाइन में ओपनिंग चाहिए तो आप डिजाइन में कर सकते हो, कर्व चाहिए ऊपर कर सकते हो। मैं अभी आप एक रेक्टेंगल दिखाती हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे ऐसे अगर रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने ये रेक्टेंगल लिया तो मैं इसको ओके करूंगी तो आप 3D में देख सकते हो ओपनिंग। अंडरस्टूड, या ओपनिंग कैसे बना, सो दैट अगर आपको नहीं समझा तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, आई कैन रिपीट इट। जस्ट राइट इन अ कमेंट, इज दिस अंडरस्टूड और नॉट। Dimension of opening. Okay, so see, if you go here, just edit. Okay, select this. I'll show you how to do. Okay, I'm going to, okay, select 3D, then go to the edit profile. In section, you have to check, means this. Here you can see the dimensions. Okay, if you don't want these dimensions, no, means here, see, if I select vertical line, your dimensions show on horizontal. So if you want the horizontal dimension is say 1000, so the dimension is 1000. If you want to change the vertical dimension, select horizontal line, and then here select, I'm selecting 2100. Okay, so 2100, and then you have to delete this. It's easy to delete, it's not an issue. Okay, okay, so see the dimensions first, then I'm going to next 1000, then here is the 2100, and then okay, see, press okay, finish. If you want to, then after adding the dimension, if you want to move ahead, so you can just from this arrow na, you can move like this. Okay, Seema ma'am. Okay, so the until this it's means like this only. I just changed, that's why. If you want, means if you have the drawing, no, you can change from this side. See,
below this wall, no, we have to know how the means what's the opening of wall. If I go here, just click on the arrow and until this line, and similarly here, like this. Then your arrow means look like this, and the opening is look like this. Okay. Similarly, you have to change the opening over here. I'm deleting this because I have just one wall, means one entire wall. So I'm going until this. Okay. Select this, then edit profile. After means before that you have to add the okay. You have to add the section because we want the opening now on this side, no? So you have to draw the section over here. Then select section, click drag until which line you want the section. Then double click on this, go to the 3D. You want opening on this side, right? So click here, go to the section, edit profile, and just draw the opening. If you want a proper dimensions, you can give. I'm just showing here how to do, so I'm not giving proper dimensions. I earlier tell you how to draw the means in dimensions. Okay, so if you want, you can just click and drag. You can see on these sides also the dimensions of the opening, height of the opening. Okay, then click OK and go to their level and just check how you want the opening. I have the AutoCAD drawing, no, so I'm just clicking until this. Yes, perfectly. It's done. Then the opening, we have a two opening only, so we did it. Okay, so you go to the 3D and just check whether it's right or wrong. And then we just give the opening. Okay, if you want to add doors, we can go in the means next day or whenever the door schedule is there, no, we have to add the door. Now if I want to add another profile, means I don't want the square, I want something different. So go to the edit profile, then go to the section of that, just delete this. In this bar, no, in modify wall, you can select arc this and click, and however you want, you just click here and done. If you want arc, no, so you can do that also. If you don't want the straight line here, you can just change it. Go to the section again. If you don't want like this, no, you just change it. I'm just showing, it's not a practical thing, but I'm showing how to do that, no. See, if you check the 3D, the opening is like this. Similarly, you can change. If I want a curve, no, I can change here. Means if I don't want this kind of this thing, I want a curve. So select this until this. Trim it, means from this, I'll select this. Then select like that. Finish it and go to the 3D. Your opening is like this. Similarly, whatever you want, no, you can do that. Yes. Yes. Just give me a minute.
So till this we have completed. I'm now showing how to change the wall. Means if you want a curve wall, how to do that? I'll show you that also. Okay. So here we have to select wall. I'm selecting now brick wall. Okay. Means a 150 thick wall. I'm drawing here the brick wall. Now go to the 3D view of it. Okay. If I want, just wait, huh? Okay. Hmm. If I want to edit in a different way, no? So how to do that? Here you can see the 3D box. Go to the front side, means you can see properly. Then select this wall, edit profile, and whatever shape you want, you can do here. Means if I want the shape like this, I will show you how to do, no? Okay. Okay, if you want a means like this, no, and then trim, and whatever the line is remain, delete it. Then you have to do means similar. Look, see, your 3D wall, different type of shape is also we can made in this. Then select here. If you want opening, then again edit profile. Inside you can make a opening. Like if I want here, no, I can say, draw the circle and then opening is done. Okay. So we have done with the wall thing. So if you have any query, just ask me. Otherwise, we just revise it and the today's session is completed. आज का सेशन हम लोग का जो वॉल डिजाइन करने का था वो कंप्लीट हुआ है. अगर आपको कुछ इसमें क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो. और अगर रिवीजन चाहिए तो आप बताना, तो फिर मैं आपको आज जो भी हुआ उसका रिवाइज कर सकती हूँ. Just means write in the comment section. If anyone has queries, just ask. Or if you have to, if you want revise, no, so we can revise it again. Participant, please ask, unmute yourself. If there is any query up till now. So for today's session, linking CAD file, then wall creation using CAD reference, types of walls and editing. These contents are for the today's session. Yes. If any doubts, then you may ask, unmute yourself and ask.